જે આજે તમે સાંભળશો તો તમને બી ખ્યાલ આવી જશે કે શું અને શું નહીં. સો સર, અને પ્લીઝ બધા લોકો પોતાનો વિડીયો ઓન કરો, સો વધારે સારું રહેશે અને ઇન્ટરેક્શન ને એ બધામાં વધારે મજા પણ આવશે. સો સર, સ્નેહલ સર, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ તમે સ્ટાર્ટ કરો જે સેશન છે તે, પ્લીઝ. હેલો ગાઈસ, વેલ જો આજે અગર આપણે વાત કરીએ તો આપણે બુલિંગ વિશે થોડી વાત કરીશું. બુલિંગની સાથે બુલિંગના રિલેટેડની જે લીગાલિટીઝ છે તેના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ આપણે સાયબર બુલિંગ વિશે વાત કરીશું, સાયબર ક્રાઇમ અને એના ટાઈપ્સ વિશે વાત કરીશું. તમે આ સાયબર બુલિંગ જે છે તેની લીગાલિટી શું છે અને એનાથી તમે કેવી રીતના બચી શકો, અને એક ફેરી અગર તમે એના વિક્ટિમ બની ગયા તો તમને શું કરવું જોઈએ. So we shall have a brief discussion about all this thing. અત્યારે પર્ટિક્યુલરલી આઈ ગેસ ઘણા બધા અલગ અલગ વ્યક્તિઓ હશે જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. સો મારથી થાય એટલું ઇઝી લેંગ્વેજમાં હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. આઈ ગેસ ઇટ વુડ બી અ મિક્સ લેંગ્વેજ વિચ વુડ બી ઇંગ્લિશ, હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી. અને કદાચ કોઈકને કંઈક સમજ નહીં પડે તો તમે બિલકુલ મને પૂછી શકશો. સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. બુલિંગથી અગર આપણે બુલિંગની વાત કરીએ તો વોટ ઇઝ બુલિંગ. તો અગર આપણે બુલિંગની વાત કરીએ તો જ્યારે કોઈ બી તમને ધમકાવે છે, ઇન્સલ્ટ કરે છે કે એ તમને હાર્મ કરશે. હવે આ બધી વસ્તુ ઇટ ડઝ ઇન્ક્લુડ્સ ધ ક્રુઅલ્ટી ફ્રોમ ફેલો સ્ટુડન્ટ્સ. તમારી સાથે જે બી સ્ટુડન્ટ્સ છે તેમની તમારા તરફની ક્રુઅલ્ટી, આ સિવાય તમારા ટીચર્સ અને એડલ્ટ, આ બધા સામેથી પણ અગર જો તમને કઈ ક્રુઅલ્ટી થતી હોય આ રીતની, આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ બુલિંગમાં થઈ જશે. સી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે સાયકોલોજીકલી અગર આપણે વાત કરીએ તો કોઈક તમને બુલી કેમ કરશે. પહેલી વાત કે એ લોકો તમને ટાર્ગેટ કરીને, તમારી શોર્ટ કમિંગ્સ જે છે તેને ટાર્ગેટ કરીને તમને ટીઝ કરવા માંગતા હોય. તમને ટીઝ કરીને તે તમને ઇરિટેટેડ કરવા માંગતા હોય, અને આ બધી વસ્તુથી એ લોકો પોતાની જાતને તમારા કરતા બેટર છે અને તમારા કરતા પાવરફુલ છે એવું જ પ્રૂવ કરવા માંગતા હોય. હવે જ્યારે તમને કોઈ નીચું પાડવાની કોશિશ કરતું હોય, સમવન ઇઝ પુલિંગ યુ, તો ઇટ ઇઝ બટ ઓબ્વિયસ કે તમે એનાથી વધારે છો, તમે એનાથી અબાવ છો, તો જ તમને કોઈ પુલ કરશે. તો જ્યારે બી આવી કોઈ ઇન્સિડન્ટ તમારી સાથે થાય તો તમે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો કે તમારી જે બી ફિઝિકલ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય, એ તમારી હાઇટ હોય, તમારી વેઇટ હોય, તમારો સ્કિનનો કલર હોય, તમારી લેંગ્વેજ હોય, તમારી એક્સેન્ટ હોય, કંઈ પણ હોય, એને તમે હંમેશા રિસ્પેક્ટ કરજો. કારણ કે રિસ્પેક્ટ પોતાની જાતને કરવું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો જ વર્લ્ડ તમારી રિસ્પેક્ટ કરશે. આ સિવાય એક વસ્તુ તમે હંમેશા ધ્યાન રાખજો કે વી ઓલ આર વેરી સ્પેશિયલ એન્ડ વી ઓલ આર વેરી યુનિક. આપણે એકબીજાથી ઘણા અલગ છે અને બહુ જ યુનિક છે અને સ્પેશિયલ છે. અને આપણે આપણી જાત ઉપર કોન્ફિડન્ટ હોવું જોઈએ અને પોતાની જાતને હંમેશા રિસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ. એક બીજી વાત કે તમે કોઈનાથી ક્યારે પણ ગભરાતા નહીં. ડોન્ટ એવર બી અફ્રેડ ઓફ એનીવન. જ્યારે બી તમારી સાથે કોઈ આવી રીતના ટીઝિંગ કરે, રેગિંગ કરે કે બુલિંગ કરતું હોય તો હંમેશા જે બી કેમ્પસ હોય કે જે બી જગ્યા હોય ત્યાં એમના જે પણ સુપીરિયર ઓથોરિટીઝ હોય એમની સાથે ક્યાં તો વાત કરો, ક્યાં તો તમારા જે બી ટ્રસ્ટવર્ધી એડલ્ટ હોય, અગર તમે બિલો 18 હો તો તમારા જે પણ ટ્રસ્ટવર્ધી એડલ્ટ હોય તેમની સાથે તમે વાત કરો. અત્યારે વી આર ઇન અ ડિજિટલ એજ. તમે બિલકુલ કમ્પ્લેન કરી શકો છો નિયરેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં, યા 100 પર પણ તમે કોલ કરી શકો છો અગર તમારી સાથે આવી કોઈ એક્ટિવિટી થતી હોય તો. એક બીજી વાત હું કહીશ કે અગર આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો રેગિંગ અને બુલિંગ આવી જે એક્ટિવિટીઝ છે they are strictly punishable as per Indian Penal Code, Protection of Children from Sexual Offences. અને બીજા ઘણા બધા એવા લોઝ છે, ઘણા બધા સ્ટેટ્સે પણ પોતાના એવા લોઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે વિચ આર એન્ટી બુલિંગ. અને એ કદાચ હું અત્યારે અહીંયા ડિસ્કસ કરવા જઈશ તો સારો એવો ટાઈમ નીકળી જશે, બટ હું તમને બ્રીફલી એવું કહી દઈશ કે અગર આપણે આઈપીસી ની વાત કરીએ વિચ ઇઝ ઇન્ડિયન પેનલ કોડ, તો આઈપીસી માં 13 એવા પ્રોવિઝન છે which starts from 339 section 339 to section 351. આવી 13 પ્રોવિઝન એવી છે જે બુલિંગ થી રિલેટેડ છે. અને આમાં અગર તમે જોવા જાઓ તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 4 to 6 months ટુ લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ આવી સજા
થઈ શકે છે કલ્પ્રિટને, અગર એનું જે ઓફેન્સ છે તેની નેચર અને ગ્રેવિટી એ પ્રકારની હોય તો. સો અગર આપણે વાત કરીએ બ્રીફમાં, તો બુલિંગ ઇઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટલી પનિશેબલ ઇન ઇન્ડિયા. હવે આપણે અગર વાત કરીએ અત્યારના ડિજિટલ એજની, જેમાં બુલિંગની સાથે સાથે લોકો બિલકુલ સાયબર બુલિંગ પણ ફેસ કરે છે. તો બિફોર કમિંગ ટુ સાયબર બુલિંગ, આપણે એ સમજી લઈએ કે વોટ ઇઝ સાયબર ક્રાઇમ. અગર આપણે સાયબર ક્રાઇમની વાત કરીએ તો સાયબર ક્રાઇમ જે છે તે એક એવું અનલોફુલ એક્ટ છે કે જેમાં કમ્પ્યુટર યુઝ થતું હોય આઈધર એઝ અ ટૂલ ઓર અ ટાર્ગેટ ઓર બોથ. ઇન શોર્ટ, તમે કોઈ બી ક્રાઇમ કરો બાય યુઝિંગ ડિજિટલ ડિવાઇસ, કમ્પ્યુટર, તો આ જે ક્રાઇમ છે તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે સાયબર ક્રાઇમમાં. અગર અત્યારે બ્રીફલી આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા એવા ક્રાઇમ્સ છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ, જ્યારે તમે કોઈનું ડિવાઇસ, કોઈનું ગેજેટ એમાં એમની ઓથોરિટી વગર, એટલે એમની પરમિશન વગર ખાલી જોવું બી છો, then also you are liable for unauthorized access, which is one type of cyber crime. અગર આપણે વાત કરીએ હેકિંગની, તો આપણે બધાને ખબર છે વોટ ઇઝ હેકિંગ. આ પણ એક ટાઈપનું સાયબર ક્રાઇમ છે. સાયબર સ્ટોકિંગની વાત કરીએ કે જેમાં તમે ડિજિટલ મીડિયમથી કોઈને ફોલો કરો છો, કોઈને સ્ટોક કરો છો. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ ઓફ સાયબર ક્રાઇમ. સાયબર બુલિંગની આપણે વાત કરીએ તો હમણાં જ હું થોડીક જ વારમાં તમને સાયબર બુલિંગ વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરશું. આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ, જ્યારે તમે કોઈ બીજાની આઈડેન્ટિટી યુઝ કરો છો, પોતાની જાતને ડિસ્ગાઇઝ કરો છો કોઈ બીજાની આઈડેન્ટિટીમાં, અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર કોઈ પણ ક્રાઇમ કરો છો, તો આ વસ્તુનો સમાવેશ પણ સાયબર ક્રાઇમમાં થાય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, પોર્નોગ્રાફી કેસીસ, ઓબ્સિનિટી થ્રુ કમ્પ્યુટર, ઇવન સાયબર ડિફેમેશન, કે જ્યારે તમે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ યુઝ કરો છો કોઈને ડિફેમ કરવા માટે, અબ્યુઝ કરવા માટે, આ પણ એક ટાઈપનું સાયબર ક્રાઇમ જ છે. અત્યારે ઇવન મોબાઈલ ફોન ક્રાઇમ, આપણે ઘણા અવેર છે કે ઘણા બધા મોબાઈલ ફોન ક્રાઇમ્સ થાય છે. આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ સાયબર ક્રાઇમમાં થાય છે. ફાઇનાન્શિયલ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ક્રાઇમ્સ, આ બધી વસ્તુનો પણ સમાવેશ સાયબર ક્રાઇમમાં થાય છે. હવે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ક્રાઇમ્સની આપણે વાત કરીએ તો કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક અને બીજા ઘણા બધા પેટન્ટ અને ઘણા બધા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ રાઇટ્સ છે જે આપણા, આ બધાનો સમાવેશ પણ સાયબર ક્રાઇમમાં થાય છે. વેલ, કમિંગ ટુ સાયબર બુલિંગ, તો અગર આપણે અત્યારે સાયબર બુલિંગની વાત કરીએ તો અત્યારે ઇન્ડિયાનો આ એક બહુ મેજર પ્રોબ્લેમ આપણે કહી શકીએ છીએ. વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન થર્ડ રેન્ક, જેમાં સાયબર બુલિંગ જે છે તે યુઝ થાય છે. સાયબર બુલિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ બી તમને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઈન ક્યાં તો ધમકાવે છે, ક્યાં તો હેરેસ કરે છે, ક્યાં તો એમ્બેરેસ કરે છે, અને by using all the technology as well as digital devices, તેઓ આ રીતનું કૃત્ય તમારી સામે કરે છે. સાયબર બુલિંગમાં ઘણા બધા લોકો કોઈ એક વ્યક્તિને ટ્રોલ કરે છે ઓનલાઈન. અગર આપણે અત્યારની વાત કરીએ તો આપણે બિલકુલ વી આર વેરી મચ અવેર કે ટ્વિટર અને આવા બીજા ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ છે જેમાં ખાલી ચિલ્ડ્રન જ નહીં બટ એડલ્ટને પણ લોકો વિક્ટિમાઇઝ કરે છે, એ લોકોને ટ્રોલ કરે છે. અગર અત્યારે આપણે વાત કરીએ તો બોલિવૂડની અગર આપણે વાત કરીએ તો નેપોટિઝમ એક એવો બેઝ લેવામાં આવ્યો છે, અને જે બી સ્ટાર કિડ્સ છે તે લોકોને લિટરલી લોકો ટ્રોલ કરે છે. હવે એમાં સાચું જૂઠું જે પણ હોય, પણ લોકો પાસે પોતાના રીઝન્સ છે અને લોકો આ પ્રેક્ટિસિસ કરે છે. તો અગર આપણે સાયબર બુલિંગની વાત કરીએ, અને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેસ હું તમને કહીશ કે જેમાં કાશ્મીરની જે એક ઓલ ગર્લ રોક બેન્ડ છે, તેમને એટલું બધું ટ્રોલ કરવામાં આવ્યું હતું કે તેમને પોતાનો જે રોક બેન્ડ છે તે બંધ કરી દેવો પડ્યો હતો ડ્યુ ટુ ધીસ સાયબર બુલિંગ. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર કે સાયબર બુલિંગ જે છે ઇટ ઇઝ નોટ કન્ફાઇન્ડ ટુ કિડ્સ બટ ઇવન એડલ્ટ આર વિક્ટિમાઇઝ ઇન સાયબર બુલિંગ. અગર આપણે વાત કરીએ પ્લેસ ઓફ અકરન્સ ઓફ સાયબર બુલિંગ, કે ક્યાં ક્યાં સાયબર બુલિંગ થઈ શકે છે, તો એમાં સૌથી પહેલા તો અગર આપણે વાત કરીએ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ વિચ ઇન્ક્લુડ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ, ટ્વિટર, બીજી ઘણી બધી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ છે, પાર્ટ ઓફ સોશિયલ મીડિયા, કે જેમાં સાયબર બુલિંગ તમારી સામે લોકો કરતા હોય છે. આ સિવાય SMS એન્ડ MMS, ટેક્સ્ટ મેસેજ એન્ડ મલ્ટીમીડિયા મેસેજીસ દ્વારા પણ તમારી સામે સાયબર બુલિંગની એક્ટિવિટી થઈ શકે છે. આ સિવાય IMS, which is instant messaging services, which include WhatsApp, Telegram,
ફેસબુક મેસેન્જર, આઈ મેસેજીસ, આવી ઘણી બધી IMS સર્વિસીસ છે જે અત્યારના ટાઈમમાં આપણે બિલકુલ યુઝ કરીએ છીએ. આના થ્રુ પણ વિક્ટિમને લોકો બુલી કરી શકે છે, ટીઝ કરી શકે છે. સિમિલરલી અગર ઈમેલની આપણે વાત કરીએ તો ઈમેલ દ્વારા પણ તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાયબર બુલિંગ કરી શકે છે. જનરલી અગર સાયબર બુલિંગની આપણે વાત કરીએ તો જે પણ હેટર્સ હોય છે તે વિક્ટિમને હ્યુમિલેટ કરે છે અને એમનું જે બી કન્ટેન્ટ છે વિચ ઇઝ પોસ્ટેડ ઓનલાઈન તેને પણ લોકો હ્યુમિલેટ કરે છે. આ સિવાય સાયબર બુલિંગમાં લોકોનું અકાઉન્ટ પણ હેક કરવામાં આવે છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ સાયબર બુલિંગ. જ્યારે ઇન્ટેન્શનલી સ્ટોક કરીને કોઈને માલાફાઇડલી હેરાન કરવા માટે એનું અકાઉન્ટ હેક કરે છે તો આ પણ પાર્ટ થઈ શકે છે સાયબર બુલિંગનો. All this is Excuse me, sir. Yes, yes. Sorry to interrupt, sir, but actually, sir, audience में से request आ रही है if you could talk in Hindi because many of our audience do not understand Gujarati much. So. So you guys started with Gujarati, so I thought that audience would be comfortable in Gujarati. Sure. Oh no, sir. Sorry to interrupt, sir. Yeah, sorry guys. Yeah. Well, I would continue in Hindi. अगर हम बात करें साइबर बुलिंग में हेटर्स की, तो जो भी हेटर्स है दे शैल ह्यूमिलेट विक्टिम्स एंड उनके जो भी कंटेंट है जो ऑनलाइन उन्होंने पोस्ट किए हैं ये सब पे वो टारगेट करेंगे इन ऑर्डर टू ह्यूमिलेट दैट पर्टिकुलर विक्टिम. सिमिलरली उसका जो अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है जब कोई भी कल्प्रिट दैट इज साइबर क्रिमिनल इंटेंशनली मालाफाइडली किसी विक्टिम का अकाउंट हैक करता है. It is also a part of cyberbullying. Similarly, many times cyber criminals do post vulgar messages and to the victim. This is also one type of cyberbullying which is very much seen nowadays. Similarly, कोई भी ऐसा एक्ट जो डराने के लिए वायोलेंस के हिसाब से विक्टिम को डराने के लिए यूज किया गया हो by the use of technology, that also forms a part of cyberbullying. हमने अभी बात की साइबर स्टॉकिंग की. इन मेनी इंसिडेंट जो भी विक्टिम है उसको लिटरली डिजिटली स्टॉक किया गया है फ्रॉम बाय द क्रिमिनल्स. अगर हम बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की और थ्रेट्स इन रिलेशन टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी. दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन साइबर बुलिंग. वेल, एक इंपॉर्टेंट बात यह है that in India जो भी cyber bullying है it is very severely punishable by Indian Penal Code, by Protection of Children from Sexual Offences as well as Information Technology Act. There are various different acts जो state wise implement किए गए हैं which are also in respect of cyber bullying. So there are various laws and they all are very strictly implemented in relation to cyber bullying. जब अगर आपको किसी ने टारगेट किया हो इन रिलेशन टू साइबर बुलिंग तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कभी भी उसको आप रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, कभी भी रिटेलिएट मत कीजिएगा या रिएक्ट मत कीजिएगा. सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए और उसे रिस्पॉन्ड मत कीजिए. सिमिलरली जो भी एविडेंसेस है उसको आप सेव करिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम साइबर बुलिंग की बात करें तो आपके पास एविडेंसेस में वो पोस्ट होगी जो आपके खिलाफ की गई है, उसकी लिंक को आप सेव रखें. सिमिलरली वो जो क्रिमिनल है उनकी जो प्रोफाइल है उसकी भी जो लिंक है उसे भी आप सेव कर लीजिए और ये जो सारी एविडेंस है उसको एक जगह पर सेव करके बिल्कुल प्रिजर्व करिए. टेक अ हेल्प ऑफ अ साइबर एक्सपर्ट. सिमिलरली यूज द अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स in order to be safe from the cyber bullying. इसके सिवाय जो भी आपके एप्लीकेशन के डेवलपर्स है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो डेवलपर्स है उसे आप रिपोर्ट करिए इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक इंसिडेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पैरेलली आप रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में विच इज योर नियरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट. साइबर सेल में अब यू हैव 100 विथ यू. विद द हेल्प ऑफ 100 आप पुलिस को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. वी हैव अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज टेकन बाय गवर्नमेंट विच इज नोन टू बी साइबर अवस्त. आपको खाली 100 पे कॉल करना है in relation to such incident and then from Ahmedabad you will get a call from CID or they will guide you in relation to the जो भी उसके बाद का प्रोसीजर है
उसके लिए। सिमिलरली पैरेलली आप cybercrime.gov.in उसके ऊपर भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया, साइबर बुलिंग इज वेरी स्ट्रिक्टली पनिशेबल अंडर आईपीसी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एज वेल एज इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी एक्ट्स हैं जिसके थ्रू पर्टिकुलरली आप पनिश कर सकते हो जो भी क्रिमिनल है उनको। वेल आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं एक बार एकदम मेरा ब्रीफ प्रेजेंटेशन रहेगा, वो जो मैं आपको एक बार कंप्लीट कर दूं, देन यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। हम सबको पता होगा कि रिसेंटली ये दो गेम्स जो है वो बहुत फेमस हुई थी। वन वाज ब्लू व्हेल गेम एंड वन वाज मोमो गेम। ये दो जो गेम थी उसमें पर्टिकुलरली जो भी विक्टिम है उसे एक लिंक के द्वारा गेम को इंस्टॉल करना था। द गेम वाज इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस। जैसे ही विक्टिम वो गेम को इंस्टॉल करेगा तो उसे कुछ चैलेंजेस दी गई होती है, और जो भी साइबर क्रिमिनल है वो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस चैलेंजिंग उसे ब्लैकमेल करते हैं और उसे एक तरह से साइबर बुलिंग करते हैं, और अल्टीमेट चैलेंज इज टू डू सुसाइड। तो ये सारी चीजें जो है उसमें विक्टिम को बहुत बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वेल, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको थर्ड पार्टी लिंक दी जाए, मतलब विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे तो इट इज वेरी रिस्की, बिकॉज जैसे ही ये एप्लीकेशन या ये गेम आपने ऐसी कोई लिंक से डाउनलोड की तो आपकी जो भी प्राइवेसी है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इन रिलेशन टू द डेवलपर्स ऑफ दैट लिंक और दैट एप्लीकेशन, और they could have access of all your messages, your SMS, your media, your gallery, your camera, everything. इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि जब भी अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, ऑलवेज गो फॉर गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर एप्पल स्टोर फॉर डाउनलोडिंग एनी एप्लीकेशन। जैसे कि अभी हमारी बात हुई, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिएगा। सिमिलरली जब भी आप कोई एप्लीकेशन इवन गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करो तो चेक कि उसके डेवलपर्स कौन हैं। सिमिलरली उसके रिव्यूज आप पढ़िए, आप समझिए कि वो क्या क्या एक्सेस ले रहे हैं, एंड आप बिल्कुल ये समझिए कि ये जो पर्टिकुलर गेम है या ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसमें ये सारी एक्सेस देना जरूरी है या नहीं है। और एक बार अगर आपको वो जेन्युइन लगी और आपने उसे डाउनलोड किया तो जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है तो वो सारी जो एक्सेस आपने वो एप्लीकेशन के डेवलपर को दी है उसे आप वापस ले लीजिए, और जब भी जरूरत नहीं हो तो आपका इंटरनेट बिल्कुल बंद रखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा साइबर क्रिमिनल आपको बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अब we shall talk about general prevention thing in relation to cyber crime. अगर हम बात करें तो सबसे पहले अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम। आप अगर मेरी बात करें तो आप मेरे नाम को गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी आपको अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे यू वुड गेट माय नंबर ऑफ वीडियोस जिसमें कुछ ना कुछ छोटी बड़ी इंसिडेंट की बात की गई है, साइबर क्राइम केसेस की बात की गई है। आई हैव 2 shows, one is साइबर रक्षा विद स्नेहल वकीलना, one is साइबर शो विद स्नेहल वकीलना which is in Hindi। तो उसमें भी आपको बहुत सारी साइबर अवेयरनेस टिप्स एज वेल एज साइबर क्राइम केसेस के बारे में जानकारी मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आप कभी भी आपका जो पासवर्ड है, आपका जो ओटीपी है, आपकी जो भी लॉगिन डिटेल्स है और आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। सिमिलरली कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भी अननोन चीज या जो भी चीज जो नेसेसरी नहीं है उसे आप पोस्ट मत कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप किसी को बुली मत कीजिए, और अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो उसे आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, जो हमारी अभी बात हुई। अगर आप किसी अननोन ग्रुप में ऐड किए गए हो तो उसे तुरंत ही आप वो जो भी ग्रुप है उससे आप दूर हो जाइए। सिमिलरली कोई भी अननोन लिंक या अटैचमेंट को क्लिक मत कीजिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी
आप किसी पेन ड्राइव को यूज करते हो तो वो पेन ड्राइव में एक ऑप्शन आता है विच इज ऑटो प्ले, उसे आप बिल्कुल बंद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी फोन है, आपका जो भी गैजेट है, उसमें एंटीवायरस या एंटी मालवेयर जो एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल रखिए, विच शुड बी अ लाइसेंस वर्जन, और उसे आप कंटिन्यूसली अपडेटेड रखिए। सिमिलरली ऑलवेज स्कैन बिफोर डाउनलोडिंग और ट्रांसफरिंग एनीथिंग फ्रॉम पेन ड्राइव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक भी फेस किए हैं एंड वी आर अवेयर अबाउट वेरियस रैंसमवेयर अटैक। सो हमेशा आपका जो भी डेटा है उसे आप बैकअप रखिए, बट इट शुड बी इन पोर्टेबल डिवाइस, बिकॉज वी डोंट नो दैट शायद अगला जो रैंसमवेयर अटैक होगा दैट वुड बी ऑन योर ऑनलाइन स्टोरेज, योर क्लाउड स्टोरेज। इट कुड बी दैट अभी जो नेक्स्ट रैंसमवेयर अटैक हो, they do target your cloud storage data. So I would always recommend that आपका जो भी डेटा है वो हमेशा पोर्टेबल डिवाइस में आप बैकअप रखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा आपका मोबाइल फोन जो है वो आपके नाम से ही परचेज कीजिए, और उसका जो भी बिल है विद IMEI नंबर वो आपके पास सेव रखिए, जिसके हेल्प से आप शायद कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो यू कुड ट्रैक दैट फोन विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर। एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि कभी भी आपके फोन में अगर टावर कुछ देर तक आपके फोन में टावर नहीं आए तो बी वेरी वेल अलर्ट, बिकॉज एट प्रेजेंट सिम क्लोनिंग एज वेल एज सिम स्वैपिंग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो प्रैक्टिस की जाती है। सो बी वेरी वेल अलर्ट कि आपका सिम जो है वो सेफ है। एक और बात कि जब भी आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करो देन वो आप खुद पर्सनली यूज करो। You all would be aware about card cloning, which is very much in use nowadays. Similarly, अगर हम बात करें then there are so many application जो आपके फोन में hidden format में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। So be very well alert अगर आपको कोई particular मोबाइल फोन गिफ्ट में मिल रहा है। It could be possible that जो भी विक्टिम है उसको एक मोबाइल दिया जाए जिसके अंदर कुछ एप्लीकेशन हिडन फॉर्मेट में रखे गए हो, जिसके हिसाब से उनका फोन पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी वेल अलर्ट बिफोर गेटिंग एनी फोन एज अ गिफ्ट। पर्टिकुलरली अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है आपके रिलेटिव, मेक देम वेरी मच अवेयर। जैसे कि हमने अभी बात किया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उससे आप बिल्कुल दूर रहिए। विद जो भी एप्लीकेशन आपको लिंक के द्वारा दिए जाए उसे आप बिल्कुल इंस्टॉल मत कीजिए। एक और बात कि किसी को भी आप मोबाइल फोन जो है वो मत दीजिए। इट कुड बी फॉर रिपेयरिंग, अगर आप रिपेयरिंग में भी दो तो आप आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही देना, एंड आई विल प्रेफर कि आप वहां यू शुड बी प्रेजेंट दैट एट द टाइम योर फोन इज बीइंग रिपेयर्ड। जब भी आप फोन आपका सेल करो तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका कोई भी फोन है उसे आप सेकंड हैंड सेल मत कीजिए, बिकॉज एक बार आपने फॉर्मेट भी किया देन ऑल्सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जिसके हिसाब से आपका जो भी डेटा है वो रिकवर हो सकता है, एंड द अदर पर्सन कुड यूज दैट डेटा। सो बी वेरी वेल अलर्ट, और आई वुड प्रेफर कि आप आपका जो भी फोन या जो भी गैजेट है वो सेल मत कीजिए। एक और बात कि आपका जो भी पासवर्ड है उसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक लेटर के साथ हमेशा एक स्पेस रखिए। स्पेस अगर आप रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका पासवर्ड कभी भी क्रैक नहीं होगा, बट जब भी कोई हैकर आपके पासवर्ड को क्रैक करेगा विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग सॉफ्टवेयर तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो स्पेस शुड बी देयर एट एनी पेज इन योर पासवर्ड, बट उसमें एक स्पेस जरूर रखें। जब भी आप कोई वेबसाइट में सर्फिंग करो तो एक बार चेक करना कि ऊपर HTTP हो तो उसके साथ एक S लगा हो, S स्टैंड फॉर सिक्योर, और उसके साथ पैरेलली एक लॉक का साइन होगा। इट विल एंश्योर यू दैट पर्टिकुलर योर करंट ट्रांसमिशन इज सिक्योर, बट इट डजंट मीन दैट योर कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम वायरस। इसका बस यही मतलब होगा कि आपका जो भी करंट ट्रांसमिशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इट इज लेजिटिमेट एंड इट इज सिक्योर। एक और बात, आजकल पेटीएम के केवाईसी फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो जनरली ये दो तरह से होते हैं। एक टाइप में दे आस्क फॉर ओटीपी
वी आर वेरी श्योर दैट हम हमारा OTP किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. सिमिलरली एक और मोडस ऑपरेंडी है जिसमें जो भी क्रिमिनल है वो आपको एक लिंक देते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, एंड देन दे मेक यू अपडेट योर KYC राइट फ्रॉम योर फोन. बट सी, एक बात मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि पेटीएम जो है वो कभी भी आपको कोई फोन या कोई मैसेज नहीं करेंगे फॉर अपडेटिंग योर KYC. आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर दे विल शो दैट योर KYC इज पेंडिंग, वो अपडेट नहीं हुआ. एंड पेटीएम का आपका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही अलग अलग सेंटर्स दिए गए होंगे जिसमें आप आपका KYC जो है वो अपडेट कर पाओगे. अगर आपको ऐसी कोई लिंक ऑलरेडी भेजी गई हो जिसके थ्रू आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, देन आई एम वेरी सॉरी, आपका जो भी फोन है दैट वुड बी मिरर, और जो भी क्रिमिनल है उसे आपके फोन का एक्सेस मिल जाएगा, एंड देन दे विल ऑब्वियसली मिसयूज योर फाइनेंशियल डिटेल. और आई एम वेरी श्योर कि उसके बाद अगर आपके बैंक अकाउंट में जो उसके साथ लिंक्ड है कोई बैलेंस होगा, देन यू शुड बी वेरी वेल अवेयर एंड वेरी वेल अलर्ट. अगर आपके साथ ऑलरेडी ऐसा कुछ हो गया हो तो आफ्टर मेकिंग कंप्लेन बी वेरी श्योर आप आपके फोन का जो बैकअप है वो आप ले लीजिए ऑफलाइन, आपके फोन को आप फॉर्मेट कर लीजिए, एंड देन आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एक बार अपडेट कर लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, आई वुड बी लाइक, आई गेस आप सबको ये पता होगा कि आजकल स्मार्ट टेलीविजन विद इनबिल्ट कैमरा दे आर वेरी मच फेमस. तो बी वेरी वेल अवेयर कि ये जो स्मार्ट टेलीविजन है वो भी एक तरह के कंप्यूटर है, और उसके अंदर अगर इनबिल्ट कैमरा है और आपने कोई एप्लीकेशन बाहर से डाउनलोड की है तो देयर आर एम्पल ऑफ वेज के जिसके थ्रू आपका स्मार्ट टेलीविजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. और जब आप टेलीविजन देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो जो इनबिल्ट कैमरा जो आपके स्मार्ट टेलीविजन के अंदर मौजूद है उसके थ्रू ये जो हैकर्स है वो आपके कैमरे का एक्सेस लेके जब आप टेलीविजन देख रहे हो तब टेलीविजन भी आपको देख सकता है. ऐसी कुछ सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है. ये जो चीजें हैं वो उसका जो इनिशिएटिव है वो हमने किया था इन आवर शो साइबर रक्षा विद स्नेहल वकीला, और ये जो चीज है वो राज्यसभा तक गई है. एंड एट प्रेजेंट स्मार्ट टेलीविजन विद इनबिल्ट कैमरा उसके प्राइवेसी इश्यूज को लेकर बहुत बातें चल रही है, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कंप्यूटर. उसके अंदर जो भी स्पाइंग फीचर्स है, इट इंक्लूड्स योर माइक्रोफोन, योर कैमरा, उसे आप डिसेबल रखें. और जब भी अगर आप उसे यूज कर रहे हो देन मेक श्योर कि आप एक टेप जो भी कैमरा है उसके ऊपर रखो. सो कहीं ना कहीं आपको शायद पता नहीं हो, इंटरनेट चालू हो, देन थर्ड पर्सन कुड नॉट हैव अ इजी एक्सेस ऑन योर गैजेट. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और पर्टिकुलरली अगर आप किसी होटल या गेस्ट हाउस में जाओ देन बी वेरी वेल अवेयर कि वहां कोई स्मार्ट टेलीविजन विद इनबिल्ट कैमरा अवेलेबल नहीं है. अगर हो तो उसके जो लेंस है उसके ऊपर आप ये ओपेक टेप से उसे कवर कर दीजिए. एक और बात, जब भी आप किसी चेंजिंग रूम में जाओ एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो मिरर है इट इज वन वे मिरर. टू वे मिरर में क्या होता है कि इवन मिरर के जो अपोजिट साइड है वहां से भी जो व्यक्ति है उसे इस साइड के व्यक्ति का जो एक्सेस है वो मिल जाता है. उसमें एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि आपका जो नेल है उसे आप टच करिए विद दैट मिरर. अगर आपका जो इमेज है मिरर के अंदर और आपका एक्चुअल जो नेल है उस दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप हो देन इट इज वन साइडेड मिरर. और अगर आपकी दोनों उंगलियां ज्वाइंट हो जाती है देन इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट it could be two-way mirror. Similarly, there are ample of hidden camera which have been installed at many places. तो उसके लिए always invest in hidden camera detector. ये एक ऐसा गैजेट है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे if there is any camera which is hidden in a particular room. एक और बात कि एट प्रेजेंट जब भी आप किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आपके पास तीन चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हो. वन इज सिक्योरिटी जो आपके हाथ में है, वन इज प्राइवेसी एंड वन इज रिपोर्टिंग. फॉर सिक्योरिटी
I will prefer that always go for minimum 2-step verification. Your first step verification would be your username and password, and your second step verification would be the OTP which comes on your registered mobile number. जब आप उन दोनों को एक साथ रखोगे, then and then only you would be able to enter that particular account. For privacy, I would suggest you to regularly monitor your account in every social networking site or every social media account. There is a feature जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कौन से डिवाइस ने लॉग इन किया है. तो ये जो फीचर है उसको आप बहुत फ्रूटफुल तरीके से यूज करिए एंड मेक श्योर दैट आपका जो अकाउंट है इट हैज मिनिमम 2-step वेरिफिकेशन एज वेल एज यू मॉनिटर इट फ्रीक्वेंटली. एंड थर्ड थिंग इज रिपोर्टिंग. सबसे पहले आप रिपोर्ट कीजिए वो एप्लीकेशन के डेवलपर्स को. अगर व्हाट्सएप में कोई क्राइम हो रहा हो then it is very easy, go in the help section. In it there is an option which is contact us, और उसके बाद जो भी आपके साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वो नंबर को फीड कीजिए and you could report it to WhatsApp itself. Similarly, all the social media application have the reporting feature, तो वहां भी आप रिपोर्ट कर सकते हो. Parallelly, you can call on 100. You can give an online complaint at cybercrime.gov.in, and you can even make a complaint at your nearest police station as well as at your nearest cybercrime cell. You could even take help of any cyber expert which is in touch with you. एक और बात कि अगर आप ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हो तो आपको क्या करना रहेगा. सबसे पहले you should share the fact with a reliable adult and well-wisher. सिमिलरली जैसे कि हमारी पहले बात हुई, जो भी लिंक्स है, अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे कुछ मिसचीफ हुई हो, आपका कोई अकाउंट आपके अकाउंट में कोई आइडेंटिटी थेफ्ट की बात हुई हो, जो भी लिंक है प्रोफाइल की एंड द पोस्ट, उसे आप बिल्कुल प्रिजर्व रखें एज अ एविडेंस. सिमिलरली उसे आप रिपोर्ट कीजिए टू द डेवलपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. जैसे कि हमारी अभी बात हुई, आप 100 पे cybercrime.gov.in पे आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो. सिमिलरली जैसे कि हमारी अभी बात हुई, यू कैन रिपोर्ट इट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड योर नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल. सो दिस आई गेस हमारा ये जो सेशन है वो यहाँ कंक्लूड होता है, और आपको अभी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इट टू मी प्लीज. Hello sir. Yes. Kevin Somani. मैंने एक क्वेश्चन नमस्ते सर. अच्छा, आप जी करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो. Okay sir, Gunjan sir you can go ahead. Gunjan sir you can go ahead. ओके, थैंक यू सो मच. सर मैं नेपाल में रहता हूँ जी, और इसमें P4P पे मैं काफी टाइम से, लगभग अराउंड 3 मंथ से मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑलमोस्ट. एंड ये जो आपका सेशन है इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं लास्ट सितंबर के अंदर में एक साइबर क्राइम का विक्टिम बना था. अच्छा, ओके. हुआ क्या था कि मैंने एक कोई उसके अंदर में जैसे अपने जो ऑनलाइन मोड पेमेंट करते हैं उसी के थ्रू मैंने क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया था, डेबिट कार्ड पेमेंट किया था. और डेबिट कार्ड पेमेंट करते ही उबर का पेमेंट था एक्चुअली वो. तो उसके अंदर में उबर वाले के उसमें मेरा कुछ इश्यू हो गया था. तो मैंने उस टाइम में लेट गो किया. 2 दिन तक मेरा पैसा वापस रिफंड नहीं आया. तो मैंने सोचा कि अब कहाँ उसको मैं वापस से फाइल करूं. तो रैंडमली मैंने गूगल से एक नंबर सर्च किया जो कोई उबर के नाम से उसमें था गूगल पे. उस पे मैंने कॉल किया. तो देवर इन टच विद मी 22 मिनट. जो भी सर्च है उसको आप सीरियसली मत लीजिए प्लीज. हाँ, एकदम नहीं. मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी कि गूगल का कोई भी जो है उसमें नंबर्स हैं उस पे कुछ भी एक्शन ले या कुछ भी उसको फॉलो करे. तो 22 मिनट तक बंदे ने मेरे से बात की. कोई दिल्ली बेस्ड था या क्या था मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसने टीम व्यूअर ऐप जो होता है ना वो मुझसे डाउनलोड करवाया. अब गॉड नोज मैंने कैसे डाउनलोड किया वो, बट मैंने डाउनलोड किया एंड ही टुक 1 रुपी. उसने सिर्फ 1 रुपया मुझसे डिमांड किया कि सर मैं आपका अकाउंट एक्सेस करना चाहता हूँ, वी आर नॉट एबल टू फाइंड योर अकाउंट ओवर हियर, सो यू मेक अ पेमेंट, बिकॉज आपका डेबिट कार्ड अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा हमारे साइट पे, ऐप पे, साइट पे, तो हम आपका रिफंड नहीं दे पाएंगे. माई रिफंड वॉज ऑफ अराउंड 400 समथिंग रुपीज. तो ठीक है, मैंने 1 रुपए का डेबिट कार्ड से वापस से मैंने उसके अंदर में OTP करके दिया. विद इन यू वोंट बिलीव, विद इन 7 सेकेंड्स
मेरे 34,800 रुपीज क्लीन हो गए अकाउंट से। और अब गॉड्स ग्रेस समझिए कि मैं जहाँ पे बैठा था वहां पे मेरे कजन थे, एंड उनका कोई वहां पे बैंगलोर के अंदर में लिंक था, कई जो साइबर क्राइम के कमिश्नर है बैंगलोर के, उनसे। तो विद इन 24 आवर्स जो मेरा बैंक है उससे, साइबर क्राइम के कमिश्नर से जो असिस्टेंस लेना था, करना था, तो इट वाज लाइक 24 आवर्स में जितने प्रोसेस थे मैंने फाइल अप किए, एंड विद इन 5 डेज मेरा 34,000 तो जो आया वो आया ही वापस। उसके अलावा वही सेम टाइम पे किसी के 36,000 और उस टाइम हुए, अच्छा, तो वो 36,000 भी मेरे अकाउंट के अंदर में उन लोगों ने एड अप कर दिए। तो मेरा जो बैलेंस था अराउंड 70,000 आ गया। तो आई थॉट कि अरे 70,000 कैसे आ गया। तो आफ्टर लाइक कॉन्टेक्टिंग द बैंक एंड ऑल, ठीक है, आई गॉट माई मनी डिडक्टिंग सम 300-400 रुपीज, एंड इट वाज लाइक दैट। बट लेकिन जो बैंक और जो साइबर कमिश्नर और उन सब से जो उस टाइम में जो मैंने 2 दिन में लिंक किया, उनसे बात हुई ना, तो एट दैट टाइम यानी लास्ट सितंबर के अंदर में रजिस्टर्ड केस 7,000 थे, जिसके अंदर में सिर्फ 400 केसेस उसके अंदर में सॉल्व हुए थे। यस, और आज की डेट में भी उनसे बात होती है कमिश्नर सर से, तो ही सेज लाइक 17-18,000 केस रजिस्टर्ड है, बट परसेंटेज इज नील के राइट, बराबर। जो ये पूरा रैकेट है कानपुर, अलीगढ़, वहां तक है कि थर्ड कंट्री में पैसा चला जाता है आफ्टर 24-48 आवर्स के बाद में। तो वी वोंट, बहुत कम चांसेस है। क्रेडिट कार्ड में फिर भी चांसेस है क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड रहता है आजकल। बट जो मेरा कहना है सबको, या जो भी सुन रहे हैं, कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, कोई भी ऐसा है जिससे अपने क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई भी तरीके का मोबाइल से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो ऐप बिल्कुल नहीं रखिए। अगर वो अगर रखते हैं तो एकदम 100% चांस है कि विल बी हैक्ड एट एनी टाइम। चलो, इट इज वेरी गुड कि आपको आपके अमाउंट जो है वो आपको मिल गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़े सोर्सेस थे तब मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलते सर। जी, एक्चुअली अगर आपके साथ कोई भी अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो और अगर आप 3 दिन के अंदर बैंक को इंटीमेट कर दो, देन इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि आपको आपके पैसे मिल सकते हैं। बट आपके केस में आपने खुद टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। इट मींस कि आपने जानबूझ के उनको एक्सेस दिया था। तो हियर इट वाज योर फॉल्ट, बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपका जो भी अमाउंट है वो श्योर एकदम डबल आ गया था सर। थैंक यू श्योर ठीक है। केविन, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन था? यस सर। सर मेरे साथ एक बार हुआ था, व्हाट आई हैड वाज कि आपने जैसे बोला कि यू हैव टू कीप डबल वेरिफिकेशन, 2-step वेरिफिकेशन रखना। मिनिमम 2-step वेरिफिकेशन। या सो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि व्हाइल आई वाज एक्सेसिंग माय जीमेल अकाउंट और मेरे को मेरे ओटीपी आए, बट इट इज सिंपल कि ओटीपी आपके पास आएगा, बट मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरे को मेरा ओटीपी एक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, एंड वो और किसी के फोन में रीडायरेक्ट हुआ। ओके, और जैसे ही वो ओटीपी रीडायरेक्ट हुआ, मेरे सामने पूरा अकाउंट मेरा एक्सेस हो रहा है और सारी डिटेल्स मेरे सामने से जा रही है। सो उस टाइम पे हाउ शुड आई डू इट? मैंने बाद में रिसर्च किया, इट वाज समथिंग कॉल्ड एज SS7 फ्लॉ, जहाँ पे कुछ नेटवर्क पैकेट्स और कुछ ट्रांसफर करते हैं। एंड हुआ था या किसमें हुआ था? सॉरी सर, फेसबुक अकाउंट में कौन से एप्लीकेशन में? सर जीमेल ईमेल में। ओके यस। या ऑब्वियसली मतलब किसी ने आपका जो 2-step वेरिफिकेशन है, ऑब्वियसली डेटा पैकेट्स के थ्रू उन्होंने आपका जो भी कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होगा और आप वल्नरेबल हुए होंगे, और आपका जो ये 2-step वेरिफिकेशन में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे उन्होंने चेंज कर दिया होगा। then only this could be possible। बट आपको मिल गया आपका वो अकाउंट? क्या हुआ? यस सर, आई डिड फॉर्चुनेटली बहुत कुछ जो नहीं जाना चाहिए था वो सब नहीं गया। इवन यू कैन कंप्लेन इट टू जीमेल। आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो सकता है। सिमिलरली आपका एक रूट ईमेल आईडी होगा उसके साथ, बिकॉज़ इन जीमेल यू कैन हैव मोर देन 2-step वेरिफिकेशन। यस। सो बट सर माय क्वेश्चन इज के
phones में SS7 फ्लॉ अब तक मतलब I have been following this whole IT thing, this whole technical thing, मतलब the whole scenario of ethical hacking and all stuff. मैंने देखा है कि phones are more vulnerable to this SS7 flaws, MITM, DDoS type of attacks. So Yeah. how does a person makes himself at most secure to these things? ये चीजें से The security of any person, but he have to be very much alert because there are ample of crimes, there are n number of crime which could be practiced against you. So ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि यही टाइप का क्राइम आपके साथ होगा. और आजकल तो everyone has some or other technical background or they are very much technically literate. So ऐसा कोई particular पहले से डाइवर्टेड कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि वही किया जाएगा आपके साथ. यू जस्ट हैव टू बी वेरी मच अलर्ट एंड एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए. मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाता है. आपका जो सिम कार्ड है वो आपने चेंज कर दिया, आपको शायद आपको ये ध्यान नहीं होगा कि वही जो नंबर है आपका पुराना नंबर वो कितने जगह में आपने एज अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने यूज किया होगा. तो ऐसे टाइम में भी आप वल्नरेबल हो जाते हो. वो जो पर्सन जिसके पास वो नंबर आ गया, he have a privilege over your account. तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं. So you are supposed to be very well active and you are supposed to be very much alert. उतना ही मैं कहूँगा. And sir, what about how do we identify phishing pages? फिशिंग पेजेस में क्या है कि एटलीस्ट जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट कहा इन रिलेशन टू सिक्योर वेबसाइट, तो जनरली आप ये एक थंब रूल तो आप नहीं, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस थिंग के विच इज कंपैरेटिवली अ नॉन टेक्निकल थिंग कि वो कोई भी कर सकता है. बाकी जो चीजें हैं देयर आर बिट ऑफ टेक्निकल थिंग्स, बट यहाँ आप एटलीस्ट इतना देख सकते हो कि ऊपर इट इज HTTPS, S स्टैंड फॉर सिक्योर, और उसके साथ ही एक लॉक की साइन वहां दी गई होगी. उन दोनों में अगर आपको वो दोनों चीजें मिले, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जो चीज है वो लेजिटिमेट है या जेन्युइन है एट द टाइम ऑफ गिविंग योर पासवर्ड. ये भी आपको जब आप पासवर्ड एंटर करोगे तब आएगा. तो एटलीस्ट दिस इज द थिंग कि कोई लेमैन जो है ही कुड यूज दिस थिंग. ऑल अदर टेक्निक्स आर वेरी टेक्निकल. सो आप मुझे बाद में सेशन के बाद या 1-2 दिन बाद यू कैन मेल मी, देन वो मैं आपको डिटेल्स दूंगा. Sure, sir. ओके, सो अनुराग का क्वेश्चन है कि आजकल OLX पे बहुत सारे फ्रॉडर है. मैंने भी देखा था कि जैसे कुछ बाइक OLX सो उसपे क्या होता है कि वो अननोन पर्सन किसी भी नंबर या किसी भी जीमेल अकाउंट से पेटीएम से पैसा, मतलब कि हम वो पूरा टोटली की जेन्युइन बाय सेलर है ऐसे ही करता है, बट लास्ट में जो आप वो लिंक भेजता है कि आप इस लिंक पे पैसे भेजिए, तो वो लिंक हमें लगता है कि हाँ ये तो सिर्फ लेने हैं ना हमें पैसे एज अ सेलर. सो वो लिंक ऐसी भेजता है कि हम उसे पैसे भेज रहे हैं कि पे टू हिम. सो उससे कैसे बचे? और जी प्लीज यस सर प्लीज. या सो वो मतलब वो लिंक पे हम क्लिक करेंगे कि हम ऐसे सेलर लेंगे पैसे, बट नहीं, वो ऐसी लिंक भेजेगा कि हाँ हमें उसे पैसे देना है, और वो पैसे लेके फिर उसका नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो नंबर स्विच ऑफ ही हो जाएगा, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. तो ऐसी चीजें से और कैसे बचे? मतलब कि एकदम सिंपल है कि आप किसी भी अननोन लिंक पे आप क्लिक मत कीजिए, बिकॉज इतने सारे क्रिमिनल्स होंगे. और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अननोन लिंक है उसमें आपको थर्ड पार्टी ऐप ही दिए जाते हैं. जैसे ही आपने उसको क्लिक किया आपका फोन मिरर हो जाएगा, फिर आप आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो करोगे, ये सारे आपके जो क्रेडेंशियल है वो आपके क्रिमिनल के पास आ गए, एंड देन ही कुड इजीली मिसयूज. तो बेटर है कि आप एटलीस्ट अननोन लिंक पे क्लिक ही मत कीजिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और उसके सिवाय अगर आपके साथ कोई अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, तो जैसे मैंने अभी आप कहा कि 3 दिन के अंदर आप आपकी जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसे आप प्रॉपर एक कंप्लेन कर सकते हो जिसका एविडेंस आपके पास रहे. आप ईमेल कर सकते हो या आप रिटर्न कंप्लेन उनको दीजिए, टेक अ रिसीव. देन एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इन 2017 आपको 10 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे. जनरली 10 दिन के अंदर नहीं मिलते, मगर मिल जाते हैं. देयर हैव बीन वेरियस पॉजिटिव केसेस.
सो यस सर, जैसे आपने कहा, जी या जैसे सर आपने कहा कि पुलिस कंप्लेन, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट या वहां पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, सो वहां पे बहुत सारी रिक्वेस्ट डेली की आती है, जैसे कि जितने लोग करते हैं कि 2 lakhs 3 lakhs गए हमारे के ऐसे लिंक पे क्लिक करने से या कॉल पे ओटीपी देने से, और ऐसी रिक्वेस्ट बहुत सारी आती है। जैसे कि चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि साइबर क्राइम और पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसके उसके बाद क्या करें हम, जो जैसे हमने रिक्वेस्ट की है बट उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बाद या उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें आपका फॉल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपका ओटीपी किसी के साथ शेयर कर दिया, आप खुद आपके घर की चाबी किसी को दे रहे हो, तो उसमें पुलिस भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। आई एम वेरी ग्लैड कि देन आल्सो दे डू एंटरटेन सच केसेस, बट ऐसे जो केसेस है उसके सामने आप जो भी क्रिमिनल केस है वो कर सकते हो। एक सीधी बात है, आपके बैंक का अमाउंट है और वो किसी और के बैंक के अकाउंट में बोल रहा है, एक ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसके सामने आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो। बट देन ऑल्सो अगर आप ओटीपी आपका जो भी है वो उनको सामने से दे रहे हो, देन इट इज योर फॉल्ट, फिर आप पुलिस को ब्लेम नहीं कर पाओगे। देन ऑल्सो आई एम ग्लैड दैट दे डू एंटरटेन सच केसेस, बट हर जगह यू हैव टू बी अलर्ट और फॉलो अप आपको लेना पड़ेगा। एंड ये सारे केसेस में बैंक अकाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होती है, एंड देयर आर वेरियस अदर थिंग्स जिसके साथ आप उस क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हो। और आजकल ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें इनके जो अकाउंट है उसको पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा डेबिट फ्रीज किया जाता है। दैट इज, उसके अकाउंट में कोई भी अगर पैसा है वो आएगा, बट वहां से वो विड्रॉ नहीं हो सकता। तो आजकल देयर आर एम्पल ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, और पॉजिटिवली बहुत सारे केसेस में हमें अच्छे आउटकम्स मिल रहे हैं। we have to trust and we have to be dependent on law enforcement agencies, उतना तो मैं आपको कहूंगा जी। डेफिनेटली सर। और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्लू व्हेल गेम थी, जैसे पास्ट में कि 24 डेज मतलब डेयर और वो सब पूरा डीप, मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम कह सकते हैं हम उसे, बट उससे बचने के लिए वो लिंक हमारे पास अभी बहुत बहुत के पास नहीं थी, बट जो कुछ लोग हम कह सकते हैं कि किसी के पास है या होगी जो बैन हो चुकी है, बट उससे निकलने के लिए बाहर या उसमें ना घुस पाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? कि उसके देखिए, उसके बहुत इंपॉर्टेंट बात उस है पे कि आपको अगर ऐसी लिंक मिल जाए तो वो लिंक पे आप क्लिक मत कीजिए, वो एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। एंड पैरेलली वो जो लिंक है उसे आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दिखाइए, क्योंकि वी हैव द पावर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। वो जो लिंक है उसके बेसिस के ऊपर दे वुड बी एबल टू ट्रैक द आईपी एड्रेस एज वेल एज आईएमईआई नंबर कि जहां से वो लिंक क्रिएट की गई हो। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आईपी एज वेल एज आईएमईआई नंबर, उनका जो लोकेशन है उसको जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो बिल्कुल ट्रैक कर पाएंगे। सो ऐसी कोई लिंक आपके पास हो, देन शेयर इट विद appropriate authorities, पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। ओके, डेफिनेटली सर। और एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट वीडियो अभी हमने देखा, जो साइबर रक्षा पे कि पिज्जा डिलीवरी के फ्रॉड की वजह से, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि जोमेटो और स्विगी पे जो स्कैम हो रहे हैं उस पे क्या कर सकते हैं, या आपने जो बोला था कि आप प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ऑडिबल ऑडियो मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा है। या जी अभी आ रहा है सर? यस यस यस। या 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 साइबर रक्षा पे आपका अभी जो लास्ट वीडियो है कि पिज्जा, फ्री पिज्जा के नाम पे स्कैम हुआ, जो पैसे 60,000, या हाँ, सो ऐसा ही क्वेश्चन है कि जोमेटो और स्विगी पे जो स्कैम हो रहे हैं उससे बचने के लिए, उसे सेफ्टी मतलब सेफ पेमेंट के लिए या उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतनी एंश्योरिटी रखिए कि वो आप जोमेटो एंड स्विगी में ही कॉल कर रहे हो, आप किसी थर्ड पर्सन को कॉल नहीं कर रहे हो। और अगर पेमेंट है तो गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी, डोंट गो ऑन ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो बी वेरी वेल एंश्योर कि कहाँ आप पेमेंट कर रहे हो, वो पर्सन लेजिटिमेट है, यू नो हिम, यू नो दैट प्लेस,
and you know that channel, then and then only go for online payment. और कभी भी कोई भी पिज्जा हो या एनी फूड या एनीथिंग, अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जाए तो विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बिकॉज इट वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन योर प्ले स्टोर और योर iOS. मतलब आप सर्च करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करोगे, आप वो लिंक पे क्लिक करके ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे. तो अवॉइड दिस थिंग, सर्टेनली अवॉइड ऑल दिस एप्लीकेशन जो आपको लिंक के द्वारा दिए गए हो. इतनी आप सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ले सकते जी. या और सर और एक क्वेश्चन था कि ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं कि आजकल अभी जो उद्धव ठाकरे के जो सन है उनके आदित्य ठाकरे, तो उनके नाम का एक बुलिंग कह सकते हैं उसे हम कि लिटिल पेंगुइन या ऐसा कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. सो ऐसे बुलिंग मतलब एक नंबर ऑफ 20,000 हैशटैग्स या 20,000 प्लस ट्वीट्स, सो उसको उतने सारे अकाउंट्स तो ट्विटर ब्लॉक नहीं कर सकता. सो उससे बचने के लिए या उसे कंट्रोल में लाने के लिए क्या मतलब हम कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए डिपेंडिंग कि वो ट्वीट डिपेंडिंग कि वो ट्वीट कैसा है उसके एक्शन आप बिल्कुल ले सकते हो. आपके सामने 1,00,000 लोग भी क्यों नहीं हो, मगर अगर वो एक ऑब्सीन चीज हो या ऐसी कोई चीज हो विच इज नॉट वेरी गुड, मतलब विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम, तो एज पर द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ऐसा कोई भी ट्वीट हो या ऐसा कोई भी पोस्ट हो, उसमें ना केवल वो पर्सन जिसने वो ट्वीट या पोस्ट इनिशिएट किया हो, बट एवरीवन जो उसके साथ जुड़े हो, उन सब के सामने हम लीगल एक्शन ले सकते हैं. एंड हमारा जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इट इज अ वेरी गुड एक्ट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अप्रोप्रिएटली नहीं हो रहा. अदरवाइज वी हैव ऑल द प्रोविजन जिसमें वी कैन मेक ऑल दिस पर्सन इक्वली लायबल एज पर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. जी. सो या तर्जिनी आपको कुछ बोलना था शायद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. So basically, question आया है that we register ourselves with our email and phone number in many apps such as food or pizza apps, game apps, and accounts. They get our data, and then we get our inbox flooded with irrelevant mails and messages because companies trade data among themselves. So what do we do in such cases, sir? Well, first of all, if the app or if the thing which you are being into is not so reliable, do not share your personal mobile numbers with them. Parallelly, you have to wait for a while. Soon we would expect act which is known to be Data Protection Act, and there are ample of provisions in Indian Data Protection Act. I guess it was supposed to be implemented in 2020, but due to this COVID phase, I guess the implementation of Indian Data Protection Act would be in 2021. But उसके बाद it would be very helpful, और कोई भी अगर आपके डेटा का मिसयूज कर रहा है, then he would be very strictly punishable. आप at present Data Protection Bill 2018 में जो बन चुका है, उसे आप सर्च करोगे तो आपको वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी स्टडी कर सकते हो. And we shall soon expect this act. उसके बाद such kind of crimes and such kind of nuisance value वो बहुत कम हो जाएंगे. We expect at present we can just expect for the best. Yeah. Yeah, sir, I have one question. कि जैसे कि हाँ आपने बताया कि थर्ड ऐप मतलब जो थर्ड पार्टी एप्स है या लिंक्स, वो सब डेटाज और वो सब हम कवर नहीं कर सकते या परमिशंस जो है हमारे एप्लीकेशंस के पास. बट हुएवी और जैसे जो एमआईज या चाइना की जो कंपनियां हैं जो अभी बहुत हाइप है कि वो लोग फोन में से डेटा चोरी कर रहे हैं, कि कोई एप्लीकेशन नहीं कुछ नहीं, बट डायरेक्ट हमारा जो फोन में जितना भी डेटा है वो सब डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, तो वो कैसे रोके या ऐसे फोन्स यूज ना करे, या आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, तो एक बात कहूंगा कि आप समझिए कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब क्या, कि आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो. गूगल प्ले स्टोर और iOS से आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो
तो आपको एक एडिशनल बैकअप मिलता है फ्रॉम दैट प्ले स्टोर एज वेल एज दैट एप्पल एप्लीकेशन, एप्पल ऐप स्टोर। मतलब आपको एक इंश्योरिटी मिलती है कि वो जो ऐप है जो आप डाउनलोड कर रहे हो वो जेन्युइन है फ्रॉम ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैम स्कैनर, जो ऐप एक टाइम पे अवेलेबल थे एट ऑल दिस प्लेटफॉर्म, बट इवेंचुअली बीइंग दैट चाइना प्रोडक्ट वो वहां से निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी अगर वो आपके फोन के अंदर है तो अब वो हो गए थर्ड पार्टी ऐप। बिकॉज अब ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर, ये लोग इन्हें बैकअप नहीं दे रहे। तो आप अगर अभी भी ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, देन आपका जो भी डेटा है, बट ऑब्वियस आपने उनको कैमरा का एक्सेस दिया है, आपने आपका स्टोरेज का एक्सेस दिया है, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू यूज दैट ऐप। एंड नाउ गूगल प्ले स्टोर डज नॉट गिव बैकिंग टू दिस एप्लीकेशन डेवलपर्स। तो ये हो गया थर्ड पार्टी ऐप, एंड इट इज बट ऑब्वियस कि ये लोग आपके जो डेटा है उसका बिल्कुल मिसयूज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी इंश्योरिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्ले स्टोर। सो यही implications है जो होते हैं, एंड यू शुड नॉट डाउनलोड एनी ऐप थ्रू सच लिंक्स। जी Sir, I have a question, sir. The question says that what if the person is being bullied, is being threatened? सॉरी, Hello? प्लीज What if the person being bullied is being threatened to not tell? Because now not everyone can be as strong as us. There are weak people too who cannot contact someone or raise their voice. And even though there is a helpline, millions of people are getting bullied every minute, and police cannot reach everywhere. So, what are your views on this, sir? you mean to say that the cyber bullying, तो उसके सामने how should we actually Sir, I'm really sorry, I'm साइबर बुलिंग ऑल्सो एंड जनरली भी जैसे हम देखने जाए तो स्कूल्स में भी आजकल रैगिंग वगैरह होता है, विच इज लाइक टू एक्सट्रीम। मतलब इंसान की सहने की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अगर इंसान क्रॉस कर दे तो कितना भी स्ट्रांग इंसान वीक हो जाता है। एंड हर किसी को जब बुली किया जाता है तो एक धमकी भी दी जाती है कि आप किसी को बताना मत। एंड हर बार हेल्पलाइन का यूज करके पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाती है, विच आई थिंक वीव ऑल एक्सपीरियंस। सो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? क्योंकि धमकी दिए तो हम बोलेंगे तो नहीं। देखिए, नहीं, you have to be strong and you have to make a legal complaint about the fact। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जो है वो आपको विक्टिमाइज कर रहा है, आपको वो परेशान कर रहा है, ऐसा हम नहीं सोच पाएंगे कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर व्हिच इज सपोज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय अस। See, this type of activities are very strictly punishable in India through various laws, और उसके लिए आपको उसकी एक लेजिटिमेट कंप्लेन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसकी कंप्लेन ही नहीं करोगे ये समझ के कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकेगी, तो आप उसके सामने लीगली एक्शन कैसे लोगे? तो यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू आर सपोज टू टॉक टू अ ट्रस्टवर्दी एडल्ट पर्सन अगर आप बिलो 18 हो, एंड देन यू आर सपोज टू मेक अ कंप्लेन। आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, 100 पे कॉल कीजिए। आप 100 पे बिल्कुल कॉल कर सकते हो। एट प्रेजेंट साइबर अवस्थ करके एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें आप साइबर क्राइम की कंप्लेन 100 पर ही कर सकते हो। तो यू आर सपोज टू यूज ऑल द अवेलेबल ऑप्शन, और आपको एक लीगल एक्शन तो लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये चीज को अगर कोई नोटिस ही नहीं करेगा, इसकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं हुई, तो फिर आप खुद उस व्यक्ति को जाने दे रहे हो। इट वुड amount to this thing only. You are supposed to take a legal action. It is very important. ऑफ कोर्स सर, बट अगर धमकी दी गई हो तो फिर क्या करें? आवाज कैसे उठाएं? सबसे पहले see, it is that save the evidence. उसके रिलेटेड का जो भी एविडेंस है उसे आप सेव करिए, एंड देन मेक अ कंप्लेंट। अगर धमकी दी गई हो देन आल्सो इट अमाउंट्स टू रैगिंग, और जो भी हम कहें साइबर बुलिंग, बिकॉज थ्रेटनिंग इज इक्वली अ क्राइम, but you are supposed to have a adequate evidence.
बिकॉज जी। सर अगर एक देखे ना तो जस्ट जनरल एग्जांपल दैट सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ उसमें सर उसको भी धमकी तो दी गई होगी और उसने अगर लीगली एक्शन लिया तो नतीजा इज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज दैट ही इज डेड राइट नाउ. सो ऐसा होता है दैट धमकी दी हो और आप फिर भी आवाज उठा के कंप्लेन करने जाओ तो आपको मार दिया जाता है या किसी और तरीके से चुप करवा दिया जाता है. तो ऐसे केसेस में तो इंसान की फिर जान भी चली गई तो उसके बाद एक्शन तो क्या ही करेंगे. ऐसे आप नेगेटिव मत सोचिए. यू उतना तो हमें करना पड़ेगा कि अगर आप सुशांत सिंह की भी अगर बात कर रहे हो देन ऑल्सो एट प्रेजेंट अगर उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया गया होगा और उसने कोई इनिशिएटिव लिया होगा तो आई एम वेरी श्योर कि एट प्रेजेंट अभी जो करंट सिनेरियो है यू यू आर हैविंग सो मेनी पीपल हु कुड स्टैंड बिसाइड्स यू. तो एट प्रेजेंट भी हम बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं बट बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट तो उसे उस चीज का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है बट ही हैज टू कंप्लेन. वो करना पड़ेगा. पहले से अगर हम नेगेटिव हो जाए कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. सो वी शुड बी स्ट्रांग एंड वी शुड कंप्लेन. राइट सर. के ऑल्सो साथ आने वाले के साथ कुछ भी ऐसा क्राइम हुआ हो यू कैन लेट मी नो. यू कैन टेक माय कांटेक्ट नंबर. यू कैन लेट मी नो और प्रॉपरली एक कंप्लेन इनिशिएटिव बिल्कुल करनी चाहिए. और आई एम वेरी श्योर दैट जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो बहुत पॉजिटिवली वर्क करेंगी बिकॉज आई हैव बीन हेल्पिंग सो मेनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली वर्क किया है. आई हैव मेनी पॉजिटिव इंस्टेंसेस in relation to cyber crime. So इतनी पॉजिटिविटी हमें हमारे अंदर जनरेट करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट हम एक कंप्लेन इनिशिएट कर सकें. जी. Absolutely, sir. Thank you so much. And एक last question है that to contact cyber cell there is a payment. But what about the people who cannot independently pay or cannot afford the fees? Then what should they do? No, there is no payment. Who told you? Actually, sir, ये question actually जिया करके लड़की है who has actually experienced this and she has posted this question. So अच्छा, how does she have experienced this thing? उन्होंने गूगल में किसी का नंबर स्टोर किया मतलब सेव सर्च किया और उन्हें वो नंबर मिला. Is it something like that? I think if we have Jia in the meeting, it would be great if she explains it. Because I don't think there is any payment in relation to cyber cell. You are just supposed to call 100 and then you are supposed to tell your complaint there और आपको सामने से फोन आएगा अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल से and they will give you they will take all the details और फिर आपको एक टिकट नंबर देंगे and then you are supposed to give a complaint to the nearest police station. Oh, I all don't right. Yeah. I'm very sure there is for cyber cell. All right. Thank you so much, No, sir. no payments because okay. So और किसी को कोई questions है यहाँ पे? Yes, sir. Please. No questions, but thank you to sir for guiding us so well. Thank you so much. Thank you. डेफिनेटली सर. एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे वुमेन सेफ्टीज और कुछ फोटोग्राफ्स या ऐसे कुछ होते हैं जो कपल्स या पर्सनल्स और वो शायद किसी के फोन या ऐसे जो कोई ब्लैकमेल कर रहा है ऐसे किसी को भी वो लड़का हो या लड़की डजंट मैटर बट किसी को ब्लैकमेल कर रहा है सो उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे ले और मतलब डेफिनेटली कि वो धमकी और वो सब तो उसने दिया ही होगा बट किसी के साथ बात करके या पुलिस स्टेशन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं तो जो विक्टिम होता है उसे ही लगता है कि मैं ही गुनहगार हूँ. सो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं मतलब हम आगे की प्रोसेस और उसके लिए बहुत सब्जेक्टिव है. अगर मैं अपने माइंड से सोचूं तो मुझे बहुत सारे आउटकम्स दिख रहे हैं तो आप मुझे एक सिनेरियो दीजिए एक कोई भी केस दीजिए तो मैं आपको उसके हिसाब से गाइड करूंगा. ओके. मेरी बहन है सो
लाइक जस्ट एग्जांपल कि मेरी बहन है और उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास तेरे ऐसे जो कुछ पर्सनल फोटोज हैं जो मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब मैंने खींचे हैं तेरे, और मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे ये चीज चाहिए, वरना नहीं देगा तो नहीं देगी, या तो मैं ये सब वायरल कर दूंगा, सभी साइट्स पे भेज दूंगा, तेरे मॉम डैड को दिखा दूंगा और मतलब तुझे बदनाम कर दूंगा, समथिंग समथिंग। सो ऐसा कुछ हो तो फिर उसके लिए साइबर क्राइम या किस डिपार्टमेंट या कैसे कर सकते हैं इसके आगे? देखिए सबसे पहले कि वो उसे जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप हो, फेसबुक मैसेंजर हो, किसी के थ्रू तो उससे कांटेक्ट करेगा। ओके, अब अगर वो व्हाट्सएप से करेगा तो उसका कोई भी एक यूनिक नंबर होगा, कोई मोबाइल नंबर हो या इवन ऑनलाइन जो जनरेट किया गया हो नंबर वो अवेलेबल होगा, उसके थ्रू ही वो उससे कांटेक्ट करेगा। फेसबुक होगा तो उसके पास उसका एक फेसबुक आईडी होगा जिसके थ्रू वो मैसेंजर के थ्रू उसे कांटेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हमें वो एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स है, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप को, फेसबुक है तो फेसबुक को हमें कांटेक्ट करना है, उनके डेवलपर्स को। उसके जो भी एविडेंसेस है, दैट इज द लिंक, द नंबर। व्हाट्सएप है तो उसका जो नंबर है वो, फेसबुक है तो जो लिंक है वो, उसे हमें वो एप्लीकेशन के डेवलपर्स को दे देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैरेलली हमें कंप्लेन करनी है। अब हमारे पास वो सारे एविडेंसेस होने चाहिए जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो भी आप फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हो, एवरी दैट थिंग जो हमारे पास एज ए एविडेंस है वो हमें सेव रखना है। विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो जो लिंक है, और विद द हेल्प ऑफ द फेसबुक एज वेल एज व्हाट्सएप थिंग, हमें इन लोगों के IMEI नंबर या IP एड्रेस मिल जाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ आवर लोकल पुलिस वो IMEI नंबर एंड IP एड्रेस से हमें उनका लोकेशन मिल जाएगा। अब हमारे पास उनके सामने जो एविडेंसेस है वो है, उनका लोकेशन है, एंड एज पर सेक्शन 67, 67A, 67B इसकी जो सजा है, इट इज फॉर 3 years and 5 lakh for first conviction and for 5 years and 7 lakh for subsequent conviction. एंड इवन अगर हम बात करें सेक्शन 67B की एंड 67A की, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, दिस आर वेरी स्ट्रिक्टली पनिशेबल। तो ये सब चीज, ये सब तरह से वी कुड टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस क्रिमिनल। बट सी एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। हमारे पास क्या एविडेंसेस है, कैसे हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जी। So, am I audible? I have a question. Yeah, you are audible. Yeah, you are audible. Okay. Yeah, all right, sir. Good evening. Yeah, good evening. So the thing is कि आजकल मतलब ऐसा रह रहा है ना कि बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास वगैरह है और कॉलेज वालों का भी, और जो एडल्ट्स वगैरह उनके भी डेली ट्रांजैक्शंस वगैरह रहते हैं, तो हर एक चीज वो ऐप से नहीं हो रहा है, वो लोग लिंक भेजते हैं और फिर उसमें गूगल फॉर्म रहता है और फिर वो उसमें वो बोलते हैं कि अपना इसमें OTP भी डाल दो, और उसके बाद वो मतलब पहले एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर वो बड़े ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली स्कैम हो जाता है, इट टर्न्स इनटू दैट। और उसके अलावा ये एक मतलब टिपिकल काफी चीज है कि जो टीनेजर्स वगैरह हैं और जो एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स भी हैं, तो लोग अपने फोन में वो ऐसी एप्स रखते हैं जिससे मतलब डेटा को हाइड कर सके, हाइड इट प्रो वगैरह, ये सब अलग अलग नाम से डिस्गाइज ऐसी रहती है। बट उससे क्या रहता है कि वो पूरा स्वैप कर देता है डेटा, और बहुत से लोग जिनको थोड़ा एंड्रॉइड डीबगिंग वगैरह आता है तो वो वहीं से डेटा निकाल भी लेते हैं। बिल्कुल। तो उसके विक्टिमाइजेशन से कैसे बचेगा कोई, स्पेशली जो गूगल फॉर्म वाली चीज है? लिंक पे बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। आपको कोई कुछ भी कहे, सी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो उसके प्रोज एंड कॉन्स वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। जब तक अगर आपको कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तब तक ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी चीज में इफ यू आर नॉट अवेयर, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, डोंट गो फॉर सच एजुकेशन। इवन जूम, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स वी ऑल आर अवेयर अबाउट। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लिंक के द्वारा ऐसा कोई भी एप्लीकेशन यूज कीजिए। और अगर आप यूज करें तो कोई ऐसे गैजेट से यूज करिए which is exclusively used for that thing only। तो उसमें आपका कोई भी प्राइवेट सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा
अवेलेबल नहीं हो, देन आई डोंट माइंड, आप उसे आप यूज कर सकते हो। और जब भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, देन जस्ट डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम इंटरनेट। आप ये चीज कर सकते हो अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। जी। बट सर एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि जो जेन्युइन लिंक्स भी होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, या मान लीजिए कि लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस कि आप मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, आपने मेरे को कोई लिंक भेजा या मैंने आपको कोई लिंक भेजा और उसके साथ एक बग अटैच कर दिया कि आपकी जो लोकेशन है, आपका आईपी एड्रेस है, वो भी उसमें आ जाएगा मेरे पास वंस यू डू इट। ये जेन्युइन तो लिंक कैसे? एक मतलब नॉर्मल इंसान डिफरेंशिएट कैसे करे कि ये वाला जेन्युइन है, ये वाला जेन्युइन नहीं है? क्योंकि जो जिस तरीके से फॉरवर्ड्स काम करते हैं, यू नो इट बेटर। I really know it very much। आप बिल्कुल कोई लिंक, आपको एक ही थंब रूल रखना है कि कोई भी अननोन लिंक को आप क्लिक मत कीजिए। देयर इज नथिंग लाइक जेन्युइन लिंक। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गो इनटू योर प्ले स्टेशन, वहां आप सर्च कीजिए, देन ओनली आप उसे डाउनलोड कीजिए। लिंक के द्वारा आप बिल्कुल से डाउनलोड मत कीजिए। आप और मैं शायद टेक्निकली उतने अपडेटेड होंगे कि वी हैव सम ऑफ द एप्लीकेशन, वी हैव सम ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हमें पता चल पाए कि ये जो लिंक है, इज इट अ स्पूफ, इज इट जेन्युइन लिंक और नॉट। बट जनरली जो भी लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां आपको कोई सिक्योर या अनसिक्योर वाली चीजें नहीं मिलेंगी। एक आप रूल रख सकते हो HTTPS वाला, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क गुड इन इट। सो एक रूल आप इतना ही रखिए कि आप डाउनलोड नहीं करोगे किसी भी लिंक से एप्लीकेशन। देयर इज, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग लाइक लेजिटिमेट लिंक। बट सर द थिंग इज कि मतलब जो गूगल लिंक्स होती है ना, जैसे गूगल फॉर्म्स रहते हैं, तो वो इंसान को जेन्युइन ही लगता है, भले ही वो विकेड माइंडेड पर्पस से आपका डेटा ले रहा हो। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लिया, या फोन नंबर और ईमेल आईडी तो कॉमन है, और फिर उससे मोस्ट ऑफ लोगों के पासवर्ड्स वैसे ही रहते हैं। 100%। यार तो अगर हम और आप इतने टेक्निकली अपडेटेड है, वी आर अवेयर कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड सजेस्ट एनीवन टू क्लिक ऑन एनी लिंक। अगर हम किसी लेमैन की बात करें तो एटलीस्ट वी कुड टेल हिम दैट भाई आप लिंक से दूर ही रहिए। अगर हम उनके वेल विशर तरीके से कुछ कहना चाहेंगे तो हम उन्हें एट प्रेजेंट इतना ही कह पाएंगे कि आप कोई भी लिंक को क्लिक मत कीजिए, बिकॉज देयर आर एम्पल ऑफ लिंक। आप हर तरह से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। Neil, unmute yourself. सॉरी, अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, सॉरी। सो थैंक यू अनुराग, और अब हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच स्नेहल सर फॉर नॉलेज एंड अभी हम आगे जाके जो भी डिजिटल पेमेंट करें या कुछ भी, सो ये सेफ्टी हम साथ में रखेंगे कि, और हाँ, किसी को भी कुछ भी सर से पर्सनल या कुछ अपना इंसिडेंट हुआ है आपके साथ और आप शेयर करना चाहो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। मैं सर का ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा डेफिनेटली। और या थैंक यू सो मच स्नेहल सर और योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड All the वन best. मोर थिंग, या All थैंक the यू best. सर। Yes. या Thank श्योर you. सर, थैंक यू सो मच। और आज हमारे यूथफुली सेशन, मतलब लास्ट तो नहीं, यूथफुली सीजन का लास्ट सेशन है, बट अभी से हम आगे और बहुत कुछ करने जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और हम चाहेंगे कि आप भी उसमें जुड़े और हम आपकी हेल्प भी ले। तो थैंक यू सो मच मेंटो सर, और थैंक यू सो मच। सो हम अभी Yes, we can end. We can end. Thank you so much, sir. बहुत ही अच्छी बात आपने दी. लीव कर सकते हैं सब? Yes. I'll end the meeting. Yeah. Thank you so much everyone for joining also, and thank you to sir also for amazing tips. हम सबको काम लगेंगी. Thank you so much, sir. Good night everyone. Good night, sir. Thank you.